قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ نے فرمایا، اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام فرشتوں کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں کو یاد دلایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی آسمان و زمین کے غیب اور ہر چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دینے کی حکمت اور ان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور علم کی بڑھتری کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم عطا کیا اور انہیں اشیاء کے نام سکھائے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں کہا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم نے فرشتوں کو اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں جنہیں فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت آدم کو علم کی بڑھتری حاصل تھی جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ فلما انباہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام فرشتوں کو بتا دیے تو یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت آدم کو اللہ کی طرف سے سکھائے گئے علم کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو یاد دلایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے، یعنی وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز سے واقف ہے اور وہ علم میں لامحدود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ فرشتے جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں۔ اللہ کے علم کی وسعت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ ہر چھپی ہوئی بات سے بھی واقف ہے۔ علم کی فضیلت۔ یہ آیت علم کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت آدم کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر بڑھتری حاصل ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم انسان کو بلند کرتا ہے اور اللہ کی ہدایت میں قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کا کامل علم۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ آسمان و زمین کا غیب ہو یا دلوں کے اندر کی باتیں۔ یہ آیت اللہ کی علمیت اور حکمت کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کا منصوبہ۔ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ فرشتے حضرت آدم کی تخلیق کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے تھے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے ان پر ظاہر کیا کہ حضرت آدم کو علم کی ہے، فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اللہ کی قدرت۔ یہ آیت اللہ کی قدرت اور علم کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو مخلوقات ظاہر کرتی ہیں، اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم۔ اللہ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور ان کا علم فرشتوں پر ظاہر کیا۔ اس سے حضرت آدم کی عظمت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کا غیب جاننا۔ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے، یعنی ہر چھپی اور پوشیدہ بات سے واقف ہے۔ علم کی بڑھتری۔ یہ آیت علم کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرتی ہے کہ علم ہر چیز سے بڑھ کر ہے، انسان کو عظمت اور فضیلت بخشتا ہے۔ فرشتوں کا امتحان۔ فرشتوں کو حضرت آدم کی فضیلت اور ان کی تخلیق کے مقصد کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے حضرت آدم کو علم عطا کیا اور یہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کی حکمت اور علمیت۔ اللہ نے فرشتوں کو یاد دلایا کہ وہ صرف ظاہر نہیں
बल्कि छिपी हुई बातों का भी इल्म रखता है, और हर काम में अल्लाह की हिकमत शामिल है। उस्ताद और शागिर्द की मिसाल। जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द को पेचीदा मौज़ूआत सिखाता है और जब दूसरे लोग इस शागिर्द से इन मौज़ूआत के बारे में सवाल करते हैं तो वो आसानी से जवाब दे देता है क्योंकि उसे उस्ताद ने अच्छी तरह सिखाया है। इस पर बाकी लोग हैरान होते हैं कि ये शागिर्द कैसे इतनी मालूमात रखता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम और उनकी खुसूसियात सिखाई थीं जो फरिश्तों के इल्म में नहीं थीं। डॉक्टर और तबी तुलबा की मिसाल। जैसे एक माहिर डॉक्टर अपने तुलबा को मुख्तलिफ बीमारियों और उनके इलाज के तरीकों का इल्म देता है। जब दूसरे लोग इन तुलबा से इन बीमारियों के बारे में पूछते हैं तो वो मुकम्मल इल्म के साथ जवाब देते हैं। लोग इस माहिर डॉक्टर की तरबियत और इन तुलबा की सलाहियतों को तस्लीम करते हैं। इसी तरह अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया ताकि उनके इल्म का इजहार हो। मेमार और इंजीनियर की मिसाल। जैसे एक माहिर मामार एक इमारत के तमाम हिस्सों का इल्म रखता है और उसे अपने इंजीनियर्स को मुंतकिल करता है। जब दूसरे लोग इस इमारत के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में सवाल करते हैं तो इंजीनियर इस मेमार के सिखाए हुए इल्म की बुनियाद पर दरस्त जवाब देते हैं। इस तरह मेमार की काबिलियत साबित हो जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने इश्याक के नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने उनकी फजीलत को जाहिर किया। कंप्यूटर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर की मिसाल। जैसे एक प्रोग्रामर एक पेचीदा सॉफ्टवेयर बनाता है और फिर इसे अपने टीम मेंबर्स को सिखाता है। जब इस सॉफ्टवेयर के बारे में कोई दूसरा शख्स सवाल करता है तो वो टीम मेंबर्स दुरुस्त जवाब देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोग्रामर ने हर चीज़ का इल्म दिया होता है। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अशिया के नाम सिखाए और फरिश्ते इन नामों को नहीं जानते थे। नतीजा। ये मिसालें हमें समझाती हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों पर फजीलत अता की और ये इल्म इंसान की अज़मत का सबब बना। अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म और शूर अता किया और इसी इल्म की बदौलत इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है। ये आयत इल्म की अहमियत और अल्लाह की हिकमत की वजाहत करती है। आज के दौर में इल्म की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इस आयत में बयान किया गया वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि इल्म अल्लाह की तरफ से एक अजीम नामत है और इंसान को अल्लाह ने इल्म की वजह से अजमत अता की है। जदीद जिंदगी में हम जिस दौर में हैं वो इल्म का दौर है और हर शाबे में कामयाबी का दारोमदार इल्म पर है। ये आयत हमें ये सबक है देती है कि अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है ताकि हम उसका सही इस्तेमाल करें और इंसानियत की खिदमत करें। आज की जिंदगी में इल्म तक रसाई बहुत आसान हो चुकी है, लेकिन उसके साथ हमें इस इल्म को हिकमत और सच्चाई के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई तालीमात का दुरुस्त इस्तेमाल किया, हमें भी अपने इल्म को मुफीद तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये आयत हमें सिखाती है कि इल्म का सही इस्तेमाल इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है और इल्म का गलत इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। इल्मों की फजीलत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की बुनियाद पर फजीलत अता की गई और यह ज़ाहिर होता है कि इल्म इंसान को बुलंद मकाम देता है। अल्लाह का इल्म कामिल है। अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ का इहाता करता है, चाहे वो ज़ाहिर हो या छिपी हुई। इस आयत से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की हिकमत और इल्म बेहद वसीआ हैं। आजिज़ी और तस्लीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की वजाहत के बाद फरिश्तों ने अपनी लाइल्मी का एतराफ़ किया। हमें भी आजिज़ी अख्तियार करनी चाहिए और ये तस्लीम करना चाहिए कि हम जो कुछ जानते हैं वो अल्लाह की अता है, इंसान की तख्लीकी है। सलाहियतें। अल्लाह ने इंसान को इल्म देकर उसे दुनिया में रहने और काम करने की सलाहियत अता की। ये इल्म ही इंसान को ज़मीन पर खिलाफत के फ़राइज़ इंजाम देने के काबिल बनाता है। इल्म का ज़िम्मा
दाराना इस्तेमाल। इस आयत से ये सबक भी मिलता है कि इल्म एक जिम्मेदारी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म देकर उन पर जिम्मेदारी डाली गई और हमें भी अपने इल्म का दरस्त और मुफीद इस्तेमाल करना चाहिए। ए अल्लाह, हमारे इल्म को अपनी रिजा का जरिया बना दे और उसे हमारे लिए नूर बना जो हमें तेरी राह की तरफ हदायत दे, और हमें अपनी हिकमत और फहम से नवाज ताकि हम हर काम में तेरी रिजा को मुकद्दम रखें। ए अल्लाह, हमें वो इल्म अता फरमा जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो, और हमें वो इल्म सिखा जो तूने हमें सिखाया है, और हमें उन आलमों में शामिल फरमा जो अपने इल्म को तेरी खिदमत और मखलूक की खिदमत में इस्तेमाल करते हैं। ए अल्लाह, हमें नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा और अजीम फहम अता कर, और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो तेरी अज़मत और इल्मियत को तस्लीम करते हैं और अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं। आमीन।